दोनों हाथ जुड़े हुए नौकार मंत्र का संगान करेंगे हम। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवाच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूर्णम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सप्तपावपणाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। जिनको सामायिक पचकना है वो सामायिक का पचकान कर लेंगे, आप नहीं करेंगे। करेमि भन्ते सामा इयं सावज्जं चोगं पच्चखामि जाव नियमं मुहूर्तम एकं पचासामि तुरीहं तिविहणम न करेमि न कार्येमि मनसा वैसा कैसा तस्य भन्ते परिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणम वो सिरामि। एक सामायिक कालमान तक 5 आसरा 18 पाव सेवन करने का त्याग है। 1 घंटे तक सबको 24 हार का त्याग है। कुछ समय के लिए हम कायकुप्ति का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। पूरा ढीला छोड़ दें, शरीर को जितना ढीला छोड़ सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास को भी जितना लंबा और गहरा कर सकते हैं करने का प्रयास करें। जितना सूक्ष्म कर सकते हैं करें। मन पूरा शांत। गहरी गहरी शांति की अनुभूति।
केवल शांति, केवल आनंद। महसूस करें पूरे यूनिवर्स से पीस, पावर, हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ आ रहा है। पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके हर विश को पूरा कर रहा है। दो तीन लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। Nami Namasami and Jai Jinendra, everyone. So, today is a proud moment, a moment to be inspired. We have with us Smita Rossetti. We all know our beloved Manikji Chodia and his wife Ninaji Chodia. She's the daughter of them, and also the granddaughter Smita Rossetti of Manikji Chodia. Yeah, sorry, did I say something else? Okay. नैना, नैना चोले। Naina ji, so okay, sorry, my apologies. And granddaughter of my very own beloved grandma, Sayar Baiji Chodia. I I don't know how many of y'all know here, but she was the one who had the vision of getting Samnijis here in the UK, and that was fulfilled by Manik Pehzad. So I think that is an historical moment in itself, as far as I am concerned.
Smita has carried this legacy forward on global stage. As a distinguished British diplomat, she has served in many, many countries. North Africa, South Asia, Morocco, Jerusalem, Middle East, and a lot of other countries. She is fluent in Arabic, French, Hindi, and Italian. So, a true bridge between nations and culture. Recently appointed British High Commissioner to the Bahamas, Smita's journey is a proof that with dedication, values, and courage, no dream is out of reach. So, ladies and gentlemen, can we, okay, before we welcome Smita, I think our co-chairman, Jeet Deleria, would also like to say a few words. I mean, I'm sure there is a lot more to know about Smita, but I think we can cover it in our question and answers as to how she's worked in different countries, what are the interesting parts, what are the interesting life lessons she has learned, and so on. But before then, can I please call Gigi Deleria to say a few words? Call upon Smita on stage. उनको लेके आए मेरे पास। I'm just going to introduce you. Take a seat. Okay. Thank you, Balaji, for the kind introduction, and welcome British High Commissioner to the Bahamas, Smita Rossetti. You heard about the family background. So on behalf of the JBP Trustee Board, Executive Committee, and the Board of Advisory, that what a huge moment for especially somebody from a Terapanthi family, Marwadi family, to smash the ceiling here. Yeah, that to get to such a high profile position, which we're all very, very proud of. The whole family, three sisters, Bhavna ji and Jaya ji and Smita, all three are Oxford educated, born to a father who is an MBA from Columbia University, and mom is also very highly educated. So her sister, for example, Jaya, she had worked with Rishi Sunak in the Treasury, and she's still working for the Treasury, and hopefully she will also go and achieve some more high-ranking roles. So about Smita and her family, also I would like to, to talk about her husband, Matteo, who is in education services and a principal or a head teacher in various high-profile institutes, educational institute, and the work he's doing with the government and in a school in Richmond and other stuff, which is also very proud to be as Jane's. Matteo used to come to Science Center. Her husband, Italian, used to do upvas and also follow Jainism very closely. So these are some of the memories. And when Smita was growing up in London, I believe she used to have a lot of interaction with Shamnijis in those days in Sai Center. And her children are also learning Hindi now, I understand. And they speak Marwari as well, a little bit. So all in all, it's a huge moment for us Jains in London. So how much do you know about the Bahamas? The Bahamas is, a very expensive country. It's the third most expensive country in the world. So if we're all thinking of packing the bag and thinking Smita will host us, it is expensive. But it's very close to Florida, half an hour from the Florida, and maybe Shamnijis from USA can come. And they have previously done we learned some shivir in Bahamas. So hopefully JBP could have its own retreat, perhaps. Why not? So in terms of Smita is going to give us a lot of life lessons and encouraging. We also got some children come to hear some inspirational stories. And so without further ado, I would like to invite Smita to... Subai, would you like to say? Yeah. Okay, towards the end, Subai will also share. Okay. While Vora was just very fresh from the blessings of Gurudev, daily blessings, one to one. So you can see the aura.
तो इस चिंतन को नमन करता हूँ, गुरुदेव आचार्य महाश्रमण को नमन करता हूँ, वंदामिनो समणी जी, brothers and sisters. What can I say about Smita? Obviously, like Jeet and everybody has uh, mentioned about her, and it's truly a proud moment for not only for the family but JVP and Jains all together, that we are seeing a new era of Jains moving into political situation, which is very good. And I just had a quick word with Smita. I've known Smita for a long time, since my days of Sergi. And one incident I would like to mention quickly is that when she was in Morocco, one of our relatives was in some situation where she helped us in getting all our belongings and everything. So for which it was quite helpful knowing that Smita and other politicians are in this sort of situation where, if need be, anytime, we can always rely on them for any help that we need. But on behalf of JVB, Vandamino Swasamiji, it's a really honor to see Smita going up in all these ranks, and we highly appreciate for her sparing her valuable time in coming to JVB and motivating the youngsters, and also us knowing how she has come to this stage. It will be very interesting to know. Thank you very much, Smita. Omar. Just a few words. So I like to add that recently the British Prime Minister, Sir Keir Starmer, has given the appointment letter to Smita, and she is the representative of United Kingdom in the Bahamas, a country where there's about 8,000 British nationals. So she will be looking after her experience in the conflict management, where she was managing 600 experts from around the globe in conflict, and all the work she has done with the Middle East is the need of the hour too. And her, you might find some of her videos in Arabic. She speaks Arabic very fluently, and she can relate some of the Islamic Jainism and faith part of it, and what role faith can play. We also have another civil servant with us, Neeta ji. She's there. She works in Department of Work and Pensions. So she will be listening to you. So may I call upon Smita, please, enlighten us and inspire us. Sorry, maybe should we hear from... Later. Sure. Okay, please. पहले बोल दो. अच्छा. Yeah, I also like to welcome Adeshwarji, a distinguished lawyer. You know, he is in many top organizations. We will discuss more in terms of the activities he's involved with, and many international projects as a bar council lead and ex-Supreme Court advocate, etc. There's a lot to hear from him as well. We will have good to see you, sir. One second. बाद में बुला दूं या फिर अकेले मान भी बुला दूं और फिर आदेश करवा जी इनको भी बुलाना तो फिर आपका लेक्चर थोड़ा सा बेटर है. चलिए. Many Paisa, if you want to come and say a few words. Jai Jinendra, everybody. First, let me make clear there is a conflict of interest. She's my daughter. It is not conflict. This is part of your night. And it was interesting for me to hear because she doesn't talk so much to me. But I think there's two things I sort of found interesting. One is coming from a traditional Indian family where very often it's very male orientated and we don't appreciate the role of women or even our daughters. I think the message in the world we live in today, there is no barrier. The barrier is yourself.
if you strive, you can achieve anything. As Smita said, you have to work. It doesn't come just falling into your lap. But if you do work and strive for something, then nothing is beyond anybody's reach. So that is one aspect. Second is concerning our faith. I know as a child growing up, first, we didn't have a Jain identity. If somebody asks me, and I'm talking as a teenager, what religion are you? We'd say we're Jain. What is that? Well, we're like Hindus, you know? So we ourselves weren't clear. But over the years, especially since Samdijis have been coming, I've seen the change in our youth. They're starting to understand what Jainism is. And I think we have a lot to be proud of. You know, foundation of beliefs such as ahimsa, anikantvad. I think it's really something to be proud of. And these are universal messages. Yes, there is a certain ritualistic or dogma about any religion. But if we look at the core values, they are universal. And they do not necessarily need to hold us back. Because that's another aspect I've seen growing up. Jainism is too austere, too orthodox. No, if you keep your values, that doesn't mean it's going to hold you back. You can still do practically everything and still be a good Jain. Omar. Shubham. 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 Indeed, it was a, I'm not sure whether we should say it was a very different talk today, because in every aspect of it, there was a mention of spirituality. There was an influence of Jainism, that we could see in whatever was mentioned here. And hence, I don't think we should say it was a different, but it was actually a talk that reminds us how Jainism is applicable to, to some of the most important offices and some of the most some of the most front-ending jobs that we have in the world. So it was really nice and to hear about it. I'm sure all of us have lots of more questions to ask. Despite the fact we asked so many, but that only encourages and that only sparked more questions. And I'm hopeful you'll keep on giving us time in the future as well. So, for example, I myself, I work in the field of AI. So, I myself consult our clients imbibe AI in their businesses. So, when you're talking about that particular thing, so that caught my attention. So I'm sure, likewise, everyone here, whatever field they work in, they would have got something or the other based upon this conversation and based upon the questions that were answered as well. So again, thanks a lot for giving us that opportunity and giving us your perspective. And it's always great to see this sort of thing. Again, just going back to one more story. So I was when I was last intrigued by this type was when I was listening to Jeet Bhai's wife, Anshu. So she's a doctor, right? She's a practicing doctor, and she gave a talk and she answered lots of questions. And what I realized there as well was all her answers. I'm not sure. I'm not sure how whether she realized, but she was giving doctor's response, but actually in them every answer had Jan's values.
right, in it. So it's the same thing I could see and hear today as well. That while the profession is very different, the perspective is very, very different. Um, but the point of view is coming from Jain principles, so that reflects, and that really gives us a lot of confidence as well that uh, that we are following the right way. Thank you. So that was the president of our executive committee, Shubhamji Jain. बराबर पूछ लूंगी ठीक है अच्छा उनको जाना है ठीक है तो वंदामी का लेक्चर ओके तो पहले हम लोग वंदामी का लेक्चर सुन लेंगे बाद में we will have our other distinguished guests Dr. Adish Ji Agarwal ji talk to us a little bit about his experience. Mainly about सुनोगे ना yes, Yeah, not the full just a lecture. bit about. स्मिता जी कुछ बोलना चाहती हैं? नली और सुमित कुछ का हाँ पलवाते हैं हर ये भी करना है इसको भी In the vice Mandamis. भी रुको सामायिक पाल लेंगे नवमें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो मैं उसकी आलोचना करती हूँ मन की शब्द प्रवृत्ति की हो वचन की शब्द प्रवृत्ति की हो काय की शब्द प्रवृत्ति की हो सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो इनसे लगे मेरे दोष मिथ्या हो निष्फल हो ओम आराम और पचकान भी थोड़ी देर के लिए मैं करा रही हूँ जब तक मंगल पाठ न हो जाए या यहाँ हॉल से जब तक न जाए तब तक आप लोगों को मतलब जो मंगल पाठ से पहले जाएंगे उनके लिए ये है कि 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का त्याग है और तब तक 24 हार का त्याग है जैसा कि पता है स्मिता जी को बहुत जल्दी है जाने की जल्दी है लेकिन इतना पता है कि जो जैनिज्म से इतने जुड़े हुए हैं वो मुझे सुने बिना कैसे जाएंगे और इनका इम्पोर्टेंट काम है वो भी पता है लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस अभी ये देंगे यहाँ सुनने को तो सबसे पहले मैं स्मिता जी को बहुत 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 साधुवाद देती हूँ धन्यवाद देती हूँ सभी को आज बहुत बहुत अच्छा लगा है इनकी व्यस्तता रहते बाहमास में है तो मिले पहली बार बातचीत हुई अलग से भी हुई तो इनके बारे में मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत आगम की बात से ही करना चाहूंगी अक्सर हम ठाणम सूत्र की चर्चा करते हैं ठाणम सूत्र और चौथा अध्ययन जिसमें चार चार चीजों की व्याख्या है कि चार प्रकार के व्यक्तित्व की बात को लेकर के एक बात आती है फूलों की बात आती है कि चार प्रकार के फ्लावर एक में सुगंध होता है सौंदर्य नहीं होता एक फ्लावर की क्वालिटी सुगंध है लेकिन सौंदर्य नहीं है ब्यूटी नहीं है स्मेल है दूसरे प्रकार की फ्लावर सौंदर्य है सुगंध नहीं है तीसरे प्रकार के सौंदर्य भी है और सुगंध भी है और चौथे प्रकार के न सौंदर्य है न सुगंध है आप किस प्रकार के पसंद करेंगे जिसमें दोनों है मैं सोच रही थी और स्पेशल स्मिता जी के लिए सोच रही थी कि ये किस फ्लावर की कैटेगरी में आएंगे
किस फ्लावर की कैटेगरी में आएंगे? तीसरे वाले में, जिसमें सुगंध भी और सौंदर्य भी है। और इसका फाउंडेशन में जाए हम, रीजन क्या है? जैसे बीज होता है, जैसा बीज है वैसा उसी में वही फ्लावर होगा। तो बीज क्या है? सिर्फ माणक जी को, सिर्फ माणक जी को भी कैसे देंगे? सिर्फ माणक जी को भी कैसे देंगे? और पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जिनको आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन खेत की बात है मैं नहीं जानती हूँ। माणक जी को देख करके समझ सकते हैं कि सायर बाई कैसे थे। और एक चीज, माणक जी जो सेवा करते हैं, एक बात कही थी अपने सायर बाई के लिए, उनके लिए सबसे कोई खास थी वो स्मिता। बच्चों में, बेटा बेटी और इवन पोता पोती में भी। और बोले लास्ट 2 दिन, और जिस दिन उन्होंने सांस छोड़ा, प्राण निकला इनका, तीनों बेटे 24 घंटा पास में थे। 24 घंटा। प्राण छोड़ने से पहले उन्होंने अपने बेटों से कहा जाओ चाय वाय पी लो। क्या कहा? चाय वाय पी लो, मेरे पास स्मिता है। अच्छा, मुझे स्मिता का कॉन्सेप्ट था, तो खैर उस समय ये मान लो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पोती के गोदी में उन्होंने प्राण छोड़ा। तो मैं बात बता रही थी, जितना भी मानक जी से सायर बाई के बारे में सुना, लगा वास्तव में स्पिरिचुअलिटी देखनी हो। और हसू भाई बहुत बार कहा करते हैं, समरी जी ऐसी लेडी नहीं मिलेगी। सिर्फ हसू भाई नहीं, वो तो कहते हैं जेबीबी के वो मदर थे। और सिर्फ हसू भाई ने, जिन्होंने भी उनको देखा है, मैंने कल परसों ही नीति प्रिया जी को एक बात कही। मैंने कहा एक शब्द आता है अपने आचार्यों में, एक आचार्य को कहते हैं अपने मघवा गणी के लिए, एक आता है शब्द अजात शत्रु। उनकी कोई एनिमी नहीं थी, शत्रु नहीं थी। मैंने परसों ही शायद नीति प्रिया जी को कही, जब सायर भाई के लिए किसी से भी मिलते हैं, और जो पुराने लेडी और जो उनको जानते थे, जैसे ही इतना उनके बारे में कहा, इतना कहा, मैंने कहा नीति प्रिया जी सायर भाई को एक शब्द में कहें तो वो क्या थे? अजात शत्रु। आज जेबीबी है, समनी जी यहाँ है, टोटल कौन, किसको हम एक दे सकते हैं क्रेडिट? किसको? जाहिर भाई को तो बाद में यहाँ माणक जी को देंगे। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास बैठे थे, इनको पता चला कि भाई अमेरिका में सेंटर है। बड़े भोलेपन के साथ, बचपने के साथ ही बोलेंगे, भाई बाहर, इंडिया से बाहर, यदि बाहर आप सेंटर दिए तो लंदन में क्यों नहीं? और इनके मुंह से सुनेंगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। आचार्य श्री बड़े मुस्काए, कहा कुछ नहीं। और प्रवचन में पधार रहे थे, यही बात प्रवचन में जाकर कही। माणक ये बैठा है सामने, इसने ये बात कही। और फिर कमरे में आने के बाद सिर्फ इतना ही पूछा, क्या करोगे, क्या कह रहे थे? बोले सेंटर। जिम्मेदारी कौन? बोले मैं। माँ ने कहा क्या कह के आ गए हो? कुछ सोचा, सोच के बोले? बोले हाँ सोच के बोला हूं। क्या सोची हो? मुझे पता है ये समाज का काम है, और समाज सब प्रकार के लोग होते हैं, क्रेडिट भी देंगे और क्रिटिसाइज भी करेंगे, और मैं उसके लिए तैयार हूं। साहिर भाई ने कहा तब ठीक है। एक प्रकार से उनका भी आशीर्वाद इनके साथ हो गया। तो आज मैं सोचती हूँ, मतलब एक समाज को लाभ मिले, उसके लिए यदि समनी सेंटर बना देना, एक व्यक्ति अपने भरोसे से बना देना, तो सोचिए फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने आगे फॉरवर्ड किसमें किया? बच्चों में। अब बच्चों की बात आगे की जनरेशन में भी फिर देखिए। अभी एक बात बता रहे थे, इनकी बेटी मीरा जो 11 साल की है,
मीरा ने अपनी मम्मी से एक बात कही, जो मानक जी अभी बता रहे थे। बोले समणी जी से क्या सीखा? पूछा गया समणी जी से तुमने क्या सीखा? बोले समणी जी मुझे 6 नंबर दिखाए। कितना? 6 नंबर। पूछा मुझसे ये कितना नंबर है? कितना नंबर है? 6। और उल्टा कर दें तो, दूसरे एंगल से देखो तो। बस मैंने समणी जी से यही सीखा कि आप लोग मेरे एंगल को भी समझो। आज यदि 10 साल की बच्ची अनेकांत को इतनी इजीली समझ जाए और अनेकांत को इतनी इजीली समझाने का प्रयास करे, तो सोचिए संस्कार आगे फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं कहने के लिए। और मानक जी एक बात सोचे थे, समझ जी थोड़ा सा मन में आया था कि भाई जैन तो नहीं है सामने वाला, लेकिन इन्होंने क्या किया? जैन से बढ़ के बना दिया। अपने वैल्यूज को छोड़ा नहीं, अपने प्रिंसिपल के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसका रीजन क्या है? पतंग जानते हैं आप लोग? आसमान में कब तक ऊपर जा सकता है? जब तक डोर हाथ में है, और डोर को छोड़ते ही वो कहाँ विलीन हो जाएगा पता नहीं। आज मानक जी ने खुला आसमान दिया, लेकिन साथ में डोर को पकड़ के रखा। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, हालांकि मैंने स्मिता से एक बात कही, बहुत जल्दी बहुत हाई प्लेस पर पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं समनी जी, जल्दी नहीं पहुंची हूं, बहुत लेट हो चुका है। यानी आप सोचिए कितना इनका एफर्ट्स लाइफ है, कितना हार्ड वर्क लाइफ है। इनको लग रहा है टू लेट हो चुका। इसका मतलब कितना 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 समय और श्रम लगाया है। और लेकिन एक बात साथ में और कहना चाहूंगी, एनफ नहीं है। खुला आसमान है, खुला आसमान है। इसको देखना चाहेंगे हम एप्पल कंपनी को। हर साल क्या करते हैं? अपने आप को अपग्रेड करता है। मैं सोच रही थी इनको अपग्रेड का और स्कोप है क्या? सब कुछ तो है, सोच अच्छी है, समझ अच्छी है, सब चीज है, लेकिन एप्पल कंपनी की तरह जब तक 100% में नहीं पहुंच जाए, या फिर मैं एक बात कहा करती हूं, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक बढ़ाते जाओ परसेंटेज को। है, सब चीज है, लेकिन परसेंटेज को हम और इंक्रीज कर सकते हैं। तो इनर और आउटर दोनों चीज को मैंने बहुत डीपली ध्यान दिया, सुना स्मिता जी का। मुझे लगा कि हर एंगल से हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बाहर तो सब कुछ है लेकिन अंदर से खोखला है। खोखलापन नहीं लगा, एक ठोस लगा। इतना ठोस, इतना ठोस कि जितना इनको साधुवाद दें, धन्यवाद दें, उतना अपने आप में कम है। लेकिन एक मिलने के बाद, देखने के बाद, अब तक सिर्फ मानक जी से सुनते थे, एक बोलेंगे देखने के बाद एक भीतर से जो आत्मतोष की अनुभूति होती है, जमीन में पाँव है। क्या है? जमीन में पाँव है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए अपने आप को इतने हाई प्लेस पर ले जाना। तो फूल की बात मैंने कही, तो क्यों ना फूल से इनको थोड़ा सा मैसेज भी देना चाहेंगे। हालांकि मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो बात मैं कहने जा रही हूँ, मैंने देखा सब चीज आप में है, बस परसेंटेज को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जैसे एप्पल कंपनी ज्यादा कुछ चेंज नहीं करती है, क्या करती है? हल्का सा, हल्का सा अपग्रेड करती है। और एक दूसरे को क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं? 14 15 इसको क्या बोलते हैं?
कौन सा मॉडर्न आया है? आपके पास नया बटन है या पुराना है? और पुराना है तो उसको क्या होता है, उतना उसका प्राइस भी लो हो जाता है, जबकि अंतर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब मैं किसी को बोलती हूँ, जैसे हमारे पास जो है अभी JBB का फोन, मैंने कहा ये थोड़ा गर्म होने लगा है, समझ जी कौन सा मॉडल है? 7? अरे समझ जी ये तो बेकार हो गया। तो सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं करती है, कितना करती है, इतना सा अपग्रेड करती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी फूल के माध्यम से ही, कि भाई आप खिलते रहें, सदा बहार फूल बन करके। और फूल भी कैसा, बारहमासी फूल, एक फूल का नाम आता है, सुना है आप लोगों ने? बारहमासी फूल। तो फ्लावर से ही मैं फ्लावर की बात करना चाहूंगी। फ्लावर कितने अक्षर है इसमें? FL, आगे बोलिए, OWER। बस सिर्फ मैं आपको 6 मैसेज देना चाहती हूँ, जो वैसे देखें तो सबके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो सबसे F हमको क्या कहता है? फोकस ऑन व्हाट मैटर मोस्ट। उस पर फोकस करो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज एम्बेसडर है तो बहुत चीज आपको करना ही पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ता है, लेकिन मूल बात है, और उस मूल चीज को वैल्यू के साथ, क्या सही है क्या गलत है, उस पर अपने जो मूल वैल्यू है उसको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज, सिचुएशन कितना ही आ जाए, लेकिन अपने मूल वैल्यू के साथ कभी भी व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि विजन, वैल्यू और विजन, वो विजन बनाए जो आपको पता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। कहां तक? जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है। एक लगे आज 1000 व्यक्ति के बीच भी बैठे हैं, तो लगे हमारा एक दिखना चाहिए, एक इंपॉर्टेंस दिखना चाहिए, हमारा अस्तित्व दिखना चाहिए, वो विजन बना के चले। और उस विजन के लिए साथ में क्या करना पड़ेगा? गोल बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, दोनों प्रकार का गोल लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। और साथ में अपने उस विजन के साथ उस गोल को अलाइन करते रहें कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूं या मेरा डायरेक्शन ठीक नहीं है। साथ में कई बार जब हम जाते हैं, अननोन रास्ता है, ये GPS का कई बार पता नहीं चलता है कि वो राइट बोल रहा है या लेफ्ट बोल रहा है, और पैदल जा रहे हैं। जब भी डायरेक्शन मुड़े, मैं नीति प्रिया जी को एक ही बात बोलती हूँ, फोन उनके हाथ में होता है, कि भाई मिनट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है वो देख लो। ज्यादा हो रहा है तो हमारा डायरेक्शन कैसा है, थोड़ा सा रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है। तो साथ में एनालिसिस करते रहो, अलाइन करो कि हमें विजन के निकट जा रही हूँ या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ। और दूसरी बात देखिए, अपने आप को राइट डायरेक्शन के लिए, गलत चले भी गए तो राइट डायरेक्शन के लिए अपने आप को साथ में पुल करते रहो कि नहीं, हाँ मुझे किधर जाना है, पुश करते रहो। और दूसरा होता है हमारा L, सीखते रहो। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बात कहा करते थे, एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन हम कुछ नया ना सीखें। एक इंडियन मेंटालिटी होती है, अब क्या सीखें, या जब बहुत कुछ सीख लिया तो ऐसा लगता है बस। आचार्य जी कहते थे अंतिम सांस तक स्टूडेंट बन के रहो। तो मैं कहना चाहूंगी, सीखो और एवरीडे ग्रो करो, आगे बढ़ो एवरीडे। बच्चा का पता चलता है कि हाँ भाई, बच्चा आज 1 साल का, साल की बात ना करें, क्लास की भी यदि बात करें, कि भाई आज फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, हर साल वो आगे बढ़ता है। तो हम भी क्या करें, भीतर से और बाहर से दोनों से ही अपने आप को
कुछ न कुछ नया सीखते रहें। भले वो नॉलेज से लेकर के हो सकता है, भले वो स्किल से लेकर के हो सकता है, भले वो हमारा विजन से लेकर के हो सकता है, पर्सपेक्टिव से लेकर के हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ हम सीखते रहें। और अपने सेल्फ अवेयरनेस को हम जितना बिल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है कि हमारे स्ट्रेंथ को, जो भी हमारा स्ट्रेंथ है उसको हम और कितना बढ़ा सकते हैं, हमारे स्टेमिना को कितना हम बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने एरियाज को देखो कि मैं यहाँ से कितना और अपने आप को बढ़ा सकती हूँ। और साथ में सिर्फ अपने आप को बढ़ाना, आगे करना बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। साथ में क्या करें, जो कुछ सीखा उसको हम, जो पाया है, हम साथ में भी दूसरों को भी कितना ग्रो करवा सकते हैं। इसको लेकर के मुझे एक बात मन में आती है कि अंग्रेजी दवाई और आयुर्वेदिक मेडिसिन को लें अपन, आयुर्वेदिक कितने साल पुराना है पता है किसी को? हजारों साल पुराना है। और अंग्रेजी कितने साल का? 100 साल का। आज देखिए आयुर्वेद का यदि देखें आप, जितने लोगों ने सीखा था, वो आज एक डॉक्टर बनता है, 5 साल लगाता है, 10 साल, 25 साल लगा देता है, लेकिन एक को भी तैयार नहीं करता है। वो जहां तक था वही है। और अंग्रेजी दवाई, आज एक व्यक्ति जहां तक रिसर्च करता है, दूसरा उससे आगे करता है। हर आए दिन इतनी नई नई दवाएं। इसका रीजन क्या है? अपने नॉलेज को फॉरवर्ड करते हैं, लेके चलते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो साथ में जहां भी विश्वसनीय हो कि हाँ यहाँ हम टुगेदर टीम वर्क के साथ कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास करें। और अम्बासेडर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप किसी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बल्कि आप एक सीखते भी रहें और साथ में सिखाते भी रहें। और तीसरी बात देखिए, वो हर फील्ड में ओवरकम चैलेंजेस विथ रिसाइलेंस। परिस्थितियां आएगी, सिचुएशन आएगा, लेकिन उनको हमको ओवरकम करना है कैसे? दृढ़ता के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ कि जरूरी नहीं है कि हर फील्ड में जहां भी बैठे हैं हम सक्सेस हो ही हो। अक्सर थोड़ा सा भी व्यक्ति का फेलियर आता है, गिव अप कर देता है, मायूस हो जाता है। लेकिन हर फेलियर सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो जरूरी है कि उस फेलियर को हमको लेसन लेना है, ये सोच के लेना है कि भाई ये मेरे लिए एक सक्सेस का रास्ता है। हर स्थिति में काम रहना है, पॉजिटिव रहना है। सिचुएशन भले कैसा भी आ जाए, लेकिन अपने आप को कितना हम कूल और काम रख सकते हैं। और अच्छा, तो शुभम जी का कहना है या पूरे समाज से कहना है, यदि इतना ही इम्पोर्टेंट काम है तो एक ऑप्शन है, जाना चाहें तो जा सकते हैं। स्मिता जी के लिए स्पेशल कि, और यदि बैठते हैं तो मैं थोड़ा सा स्पीडली खत्म कर देती हूँ। अच्छा, 2 मिनट में मैं, आप थोड़ा सा वॉक कर लो और 2 मिनट में खत्म कर देती हूँ। हाँ हाँ, बस। ओके ओके, हाँ मैं तो फिर खाली जस्ट आपको बता देती हूँ, ठीक है। और वापिस हम इस बात को अपन चर्चा कर लेंगे। और कोई भी परिवर्तन की जो बात लोगों ने भी पूछा था, हमको क्या करना है, हर परिवर्तन को वेलकम करना है, तो हम आगे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और एम्पावर योर सेल्फ एंड अदर, खुद को भी हमको बहुत शक्तिशाली बनाना है, और साथ में दूसरों को भी हम जितना शक्तिशाली बना सकते हैं। और लास्ट अक्षर है हमारा, सोच को और समझ को जितना हम
अपना रिफाइन कर सकते हैं। तो एक जो गोल है, लक्ष्य है, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो एक बार पूरा ध्यान दे देंगे। एफ क्या कहता है, उन्हीं चीजों पर फोकस करो जिस पर आपको आगे बढ़ना है। डेली कुछ न कुछ नया सीखो, हर परिस्थिति को दृढ़ता के साथ उसको सामना करो, परिवर्तन को स्वीकार करें, और खुद को हम जितना कर सकते हैं, और साथ में अपने सर्कल को भी, और डेली हम अपनी सोच को, एक्शन को जितना हम और रिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, फूल की तरह आप, और वो भी सुगंध भी और साथ में सुंदरता भी हो। तो अब इसमें बात इतनी है कि नई खाद देते रहें। अपने आप को और इसको बढ़िया करना है तो नई खाद देते रहें। तो यही हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। और सिर्फ आप चोरड़िया फैमिली के लिए गौरव नहीं है, तेरा पंथ समाज के लिए गौरव नहीं है, सिर्फ जेबीबी के लिए गौरव नहीं है, बल्कि आप पूरे जैन समाज का रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एक प्रकार से सबके लिए गौरव का विषय है। और यदि हम इस कंट्री के हिसाब से देखें तो पूरे आप इंडिया के लिए, क्योंकि आज बाहर की कंट्री से यदि कोई एम्बेसडर बनना, तो ये अपने आप में और बड़ी बात है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत अपने इस गौरव को फील करते हुए उस गरिमा को कितना हम बना के रख सकते हैं। गरिमा पाना बड़ी बात नहीं है, गरिमा को बनाए रखना, विश्वास पाना बड़ी बात नहीं है, विश्वास को बनाए रखना और उसको और इंक्रीज करना। तो मैं आपके लिए बहुत शुभकामना करती हूँ कि अपनी इस गरिमा को बनाए रखना है और बढ़ाते रहना है। तो एक शब्द में कहूँ तो दो चीज, समझ शक्ति और सहन शक्ति। समझ शक्ति और सहन शक्ति, इन दो पर यदि फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर और टॉलरेंस पावर, तो हम हर फील्ड में, हर सिचुएशन में हमारा जीत ही जीत है, विनर ही बन के रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार स्मिता जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ओम आरहम। और 1 मिनट के लिए, हाँ, यहाँ The JVP office bearers to come and we're going to give a small token to यहाँ पर आ गए। please. Subai, Rashmi, all the office bearers, Amit, Rupali ji, all the office bearers. please. यहाँ पर आ जाते हो। Yeah. जो भी आप हैं वो 1 मिनट स्मिता जी, कुछ नहीं, 2 मिनट आपको- माइक दे दो, एक बार दे दीजिए, जो भी training- माइक दे दो। नहीं नहीं, आपको ही बोलना था। अच्छा, मुझे ही बोला। ये आपको ही अच्छा फॉरेन ऑफिस का ट्रेनिंग कर लो, यही प्रिंसिपल्स का ट्रेनिंग मिल रहा है। अच्छा आप ही आ जाओ करना। हाँ, स्मिता जी एक बात बोल रहे हैं कि भाई जो ऑफिस में जो ट्रेनिंग दिया जाता है यही सब ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आप आ जाओ और ट्रेनिंग दे दो हमको। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात बोली है। चलिए। Please come. So it's a small token, Gurudev's frame. Hopefully it will go to Bahamas. Gurudev will come with you. Yeah, and some books for you. Thank you so much. Yeah, so please. Thank you. Thank you. जा रहे हो? अच्छा, 2 मिनट होते का समाचार सुनाना है तो मैं स्पीच को एंड कर देती हूँ। स्पीच को एंड कर देती हूँ और समाचार सुनाना है। ठीक है स्मिता जी। मैं मंगल पाठ भी साथ में कर देती हूँ। और अपन आज थोड़ा सा जल्दी ही खत्म करेंगे, थोड़ा आदिश जी को अपन थोड़ा सा सुन लेंगे और मेरा लेक्चर मैं यही एंड करती हूँ। और सामूहिक मंगल पाठ हम फिर सुना देंगे 10 मिनट बाद। पहले हम स्मिता जी को सुना रहे हैं। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतु धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पौज्जामि अरहन्ति शरणं पौज्जामि सिद्धि शरणं पौज्जामि साहु शरणं पौज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौज्जामि। ओ मारा, ठीक है।
आज हमारे सामने कुछ नए मेंबर भी हैं, सुभाष जी और इंडिया से आए हुए हैं। हाँ, तो थोड़ा सा उनको भी सुनेंगे। और अपने अमित जी के मम्मी पापा, पापा का नाम क्या बताएं, तो उनको भी सुनेंगे, अदिश जी को भी सुनेंगे। आपका शुभ नाम? हम्म, बोल दीजिए। Vandam Namasamy. Jai Jinendra, everyone. It's a great pleasure and honor to introduce Dr. Adish G. Agarwal. We have with us Dr. Adish G. Agarwal is President of International Council of Jurists in London. He's also President of International Commission of Writers, Geneva, Chairman of All India Bar Association, and ex-President of Supreme Court Bar Association. Please welcome Dr. Adish G. Agarwal. It's a great pleasure. Sir, please share your knowledge and thank you so much for joining us today. Thanks for your valuable time. और फिर उसके बाद बसु भाई वहाँ गुरुदेव के समाचार सुनाएंगे। Jai Jinendra. I originally belong to Rohtak in Haryana. And I had studied in Rohtak. I was the president of Student Union of my degree college, West College, Rohtak. And I studied law in MMH College, Ghaziabad, and LLM and PhD from Bharatiya Vidyapeeth, Pune. I edited English newspaper from 1972 to 1982, and I was the Joint Secretary of Badhugarh Bar Association, Joint Secretary of Rohtak District Bar Association, Member Executive of Delhi High Court Bar Association, then 2 times Executive Committee Member of Supreme Court Bar Association, 2 times Senior Executive Member of Supreme Court Bar Association, Vice President of Supreme Court Bar Association, and lastly, I was the President of Supreme Court Bar Association. In Bar Council, State Bar Council Chairman of Delhi, and Vice Chairman of Bar Council of India, and Acting Chairman of Bar Council of India. I am the President of International Council of Jurists, in which all judges from different parts of the country, Chief Justices and judges, members and the presidents of International Court of Justice, they are the office bearers, they are the members. And we are holding conferences in different parts of the world, which are being attended by prime ministers, presidents, chief justices. Yesterday itself, we had international march for nuclear disarmament and for peaceful world. Because yesterday we had 80th anniversary of Nagasaki bombing. As in Jain Dharma, we want there should not be any harm to anyone. Nobody, even ant, should be killed. And I may be not actually born as Jain, but my all activities, they confirm that I fully abide the principle of Jainism. When I'm daily having morning walk, and there's some ants are moving in rainy season, some other worms are there. First, I will remove that, even dead worms also. First, I will remove some, then I will take a walk. Always taking hot water. Now, in UK, I'm taking this ordinary water, but in India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, etc., always taking warm water. Why? Their water is not clean. And a person like me, who is too much traveling,
throughout the world. I'm in Delhi for 4 months. 4 months approximately in different parts of India and 4 months in other parts of outside India. So, and normally I'm not taking this bottle. I take normal tap water. My body adjusts everything. In India also, I take ordinary water. I have been the additional advocate general of 4 states. Uttar Pradesh, the government of Mr. Mulayam Singh Yadav. Punjab, the government of Mr. Prakash Singh Badal. And Haryana of Mr. Bhupender Singh Hooda. And the Tamil Nadu of government of Mr. Karunanidhi, the present CM's father. Security escorts are moving, but I will take water from railway tap. Because railway tap in India, they are taking water from big point. That will be the cleanest water. So I take like this. My security people, police people, searcher, they run and they try to bring Bisleri water, but I don't accept that. Our body should adjust everything. Although not adjusting everything means not non-vegetarian, never. I am moving in a temperature of -10. There also, I'm not taking even egg. And I bring my food, not here, because here I stay in YMCA student hostel. There I can have pure vegetarian. If I take food in vegetarian food, but in a restaurant run by your Britisher, they can give me not the meat, but curry will be from the meat. Once in Roma, I asked to give me vegetarian. In my presence, he given me the curry from that meat. I told I wanted vegetarian. You know, this is vegetarian. This contains no meat. So always my luggage is my dress are very few, only one suit. But my food, yesterday there was a gathering of 400 persons who attended our function at this speaker's corner of Hyde Park. I brought snacks from India for all about 400 people. Not only that it was cheaper, because the persons who are staying here, they should have healthy, pure vegetarian snack which they can use even after 2 months. Chana, मूंगफली, एक सतनजा साथ उनका वो बुना हुआ, उनके 3 पैकेट, 3 पैकेट different, putting in 1 packet. 2 attaches were full of only this. I paid 17,000 rupees for 123 kg baggage to Air India. So what sir has told that Jains are orthodox. This is totally wrong. Yours is not orthodoxism. That is the real way of life. Now, when you go to Europe, different countries, people are becoming total vegetarian. And they are not even taking milk. They say milk is also non-veg. I take milk. And there are special shops in Europe that will serve only veggie. They say veggie. We say vegetarian, so that will be exclusive. So, because this is the best way of life. That's why people, after trying different type of life, different food,
they are coming to a life which Jains have adopted. People are taking food early. Earlier, people were taking food early. Jains were also taking food early because there could have been a possibility of mosquitoes fell down in the food. Today it is not. The system, because we have air conditioned houses. So that is, but people like only those people take late who are drunkards. They go to club and take food late. Otherwise, normally dinner time is also early in Europe. People take 7 dinner. India, Lalas, the shopkeepers, they will close their shop at 8 or 9. They will take food late. But here, people are taking in Europe and other developed countries, dinner they take early. They are following the principle of Jainism. So I requested that Shamaniji, that she should also bless us yesterday in our program, but due to her other programs, she could not make it convenient. Acharya Alok Muniji was there. Other sadhus and saints were there, besides the citizens of about 30 countries. And I found this venue the best, most convenient, and the cheapest one. Because we are not supposed to pay any charge for the accommodation. And that cafe is there. Behind that, we had our stage, ready-made stage. And very sunny. Here in India, sunny is not good day. But it is here. Sunny day is good. People enjoy that. So I'm really thankful that I have been given this opportunity to visit this foundation. You are doing good job for the society, which is need of the hour. No conflict. Innocent people should not be killed. We are also, the jurists of the world are also of this view. And in a conference in 2014, here in London itself, when we decided that the court should protect not only the interest of the terrorist, that we have to safeguard the human rights of terrorists. First, we have to safeguard the human rights of innocent people, even at the cost of human rights of terrorists. The priority is to protect the interest of human beings who have done nothing wrong, who are here in this world to serve the society, not to put any harm to innocent lives. With these remarks, I'm happy to be here, and today I'm having 4 other programs, and tomorrow I will be going back to Delhi. So बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. इतना टाइट प्रोग्राम में भी आदित्य आए हैं, वो सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. कल मिल नहीं पाए तो आज मिलने आए, वो कितनी बड़ी बात है. तो आदित्य के बारे में बात करेंगे, बहुत बड़ी बात है. वो केवल अपने को ठीक रखने के लिए, नहीं पीऊंगा ना तो बीमार हो जाऊं. मेरा तो वकालत का काम, अगर जबान ही ना निकली
थैंक यू आदिश जी, काफी अच्छा और काफी चीजों के बारे में आपने टच किया। सिंप्लिसिटी, वे ऑफ लाइफ, जैनिज्म, नॉन वेजिटेरियन, बहुत कुछ सीखने के लिए आपके पास। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नाउ I'd like to call upon Asu bhai. As you all know, 1st, 2nd, 3rd August, there was NRI meet in Ahmedabad. So Asu bhai and our other trustees and office bearers and devotees, all many of them were there, nearly 20 people in Ahmedabad. Ashu bhai would like to share some experience with Gurudev. Thank you, Ashu bhai. और जेट लैग है तो भी हसु भाई पहले से बोले थे सबने जी मैं जल्दी जाऊंगा, मैंने बिठा के रखा। Vandamni Samniji, हाँ। brothers and sisters, what can I say and where can I start? This time, my visit to Gurudev was really extremely good. I was really blessed in every angle and every way that I can think of. Amit was with us, and I think he got the opportunity to be blessed as well. Amit, aja. आजा साथ में। So there was, I think we were there for 4 days, and I can say that every day we had opportunity to meet Gurudev for 5, 10 minutes, 15 minutes. On one occasion, we were there for 27 minutes. Wow. So it was really good. But what I would say, Gurudev only says one sentence, and you have to pick. There are 1,000 meanings in that sentence. He speaks less, but you have to understand more. And for me, I was really blessed, and बहुत कृपा किया है गुरुदेव ने मेरे ऊपर। उसके लिए हम बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, कृतज्ञता करता हूँ। और आपके लिए भी, सब लोग के लिए ब्लेसिंग्स भी है, गुरुदेव ने भेजा हुआ है। तो आई एम श्योर दैट गोइंग फॉरवर्ड we will have a better vision for JVP, better input, and with Vandami's teachings and blessings, we will move forward in a very positive way. Amit will share his views, because this time he got the opportunity to be with me, and we were very close with Gurudev. Amit? Yeah, so if you, like Asubai said, if you want to do very close seva of Gurudev, always go with Asubai. Because Asubai के साथ जाने का जो एक्सपीरियंस है, पहली बात तो आप एंटर करो, गुरुदेव हसुभाई को दूर से देख के सब छोड़ देते हैं, आ जाओ। फिर वो जब हसुभाई जाते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं आप चेयर पे बैठिए। तो गुरुदेव खुद हसुभाई को बोल रहे हैं ऐसा। फिर टाइम का वहाँ कोई लिमिट नहीं है, मतलब इतनी बार हम गए। कितना निकट बिठाया वो बताओ। वो ऐसा था कि मेरे को लग रहा है पट्टे कि से शायद सर के। पार्ट भी बैठ जाते गुरुदेव के, बस इतना दूर था, कोई डिफरेंस नहीं था। दूर से कोई देखे ऐसा लग रहा है कि पार्ट भी बैठे हैं। तो वो ऐसा था गुरुदेव के साथ। और नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बाकी संत वगैरह बोलने लग जाते हैं अब टाइम हो गया है, और जब हसू भाई और बाकी सब लोग बैठे थे लंदन वाले, तो कोई बोलता नहीं कि टाइम हो गया है। हम आपस में डिसाइड किया बहुत हो गया, अभी चलते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में हो गया, आफ्टरनून में हो गया, तो जीत जाके शाम को टाइम लिया है। मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोग क्या। एक दिन में तीसरी बार गुरुदेव देखेंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हैं ये। तो लेकिन उसमें क्या है, दो एंगल रहता है, एक तो स्पिरिचुअल और एक सोशल। जब सोशली एज अ ग्रुप आप जाते हैं तो इट्स अ रियल फन, टू स्पेंड दैट टाइम टुगेदर फॉर 3-4 days। लाइक राजेश जी यहाँ नहीं है, तो हम लोग जब खाना खा रहे थे और इधर उधर जा रहे थे, घूम रहे थे, जब लेक्चर नहीं हो रहे थे, दैट इज ऑल्सो आई फील a very like a milder version of retreat, I would say, in a way. So I just want to share a small story. तो हम एक दिन लंच पे बैठे थे, राजेश जी को वैसे ही हम परेशान कर रहे थे बहुत बार, whenever we were around, just making fun of him. तो वो किसी से भी मिल रहे थे तो बोले थे आप कहाँ से हैं, वो बोलते थे कि हम यहाँ से। अच्छा मैंने वहाँ काम किया हुआ है एक साथ। किसी और को मिलते थे, अरे आप कहाँ से, अरे मैं वहाँ से, मैं वहाँ 5 साल रहा था। फिर उनको गुरुदेव के भाई, हम गुरुदेव की सेवा का वेट कर रहे थे, तो उनके रियल भाई गुरुदेव के, मैंने कहा आपको मिलवाता हूँ। तो मैंने सुबह को मिलवाए, हम मिले, फिर राजेश जी भी आ गए। मैंने कहा गुरुदेव के भाई हैं। तो वो बोले कि आप कहाँ से, कह रहे वापी। वापी में कहाँ से, कह रहे वहां से, कह रहे वहां में कहाँ से, कह रहे मैं वहां तो 3 साल रहा हूँ। फिर एक दिन हम लंच पे बैठे हुए थे, मिला के 100 साल से ऊपर हो गया। हम लंच पे बैठे हुए थे, वहां पे भी ऐसे 2-3 लोग बैठे हुए थे, उनमें भी राजेश जी ने ऐसे सेम, मैं यहाँ रहा हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ। मैंने कहा राजेश जी आप शॉर्ट में ये बता दो कहाँ नहीं रहे, वो लिस्ट छोटा रहेगा। तो वहां पे एक लेडी बैठी थी,
वो बोले कि अच्छा अगर ऐसा है तो आप, उसने किसी जगह का नाम लिया, कह रही मैं वहां से हूँ, बहुत ही छोटा गांव है कोई, आप वहां जानते हैं, आप बताओ वहां से आपका क्या लिंक है। इट वॉज जस्ट अ फन। तो राजेश जी ऐसे खाना खा रहे थे, वो खाना खाते खाते रुक गए, उनका निवाला वहीं रह, कह रहे आप वहां से हैं? राजेश जी बोले मेरा बर्थ प्लेस हुआ। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो नेबर्स थे, बचपन में वो साथ खेले हैं, वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, उनका फैमिली का रिलेशन है। यू नो इट्स लाइक Thank you, Amit, for one. Uh, Lastly, I would like to say, जब हम ट्यूसडे जब हम लंदन रवाना हो रहे थे, तभी सुबह गुरुदेव के पास चरण स्पर्श करने गया। तो गुरुदेव ने पूछा कि आप आज जा रहे हैं? तो हमने बोला हम जा रहे हैं। तो हमको खड़ा बोला वेट करो। लास्ट में हमको बहुत अच्छा मंगल पाठ कर कर लंदन भेजा। ओवर। आंसू भाई के लिए यदि एक इस ट्रिप की बात यदि कहूँ मैं 1 मिनट में, तो आचार्य ने इनके हाइट को इतना बढ़िया बढ़ा दिया कि आसमान से टच होने लग गया है। अब दोबारा जाएंगे तो कहाँ तक टच कराएंगे पता नहीं। तो हाइट भले इनकी छोटी है, लेकिन हंसू भाई के शब्दों में इस बार की जो यात्रा है, इस बार की जो मेमोरी है, वो अपने आप में सबसे सबसे बेस्ट और यूनिक यात्रा इनकी है। तो मुझे वही लगा कि अभी ये आसमान को तो टच कर चुके हैं, अब कहाँ करेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छा। ये जेबीबी के लिए, लंदन वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आदर्शी की इतनी कृपा रहती है, इतनी कृपा। लेकिन साथ में मेरे पास एक कंप्लेन भी आया। कंप्लेन भी सुना दूं? बोले समझ जी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जेबीबी लंदन वालों का ही वो रिट्रीट ये है, एनआरआई। बोले और कोई आचार्य के पास दिख ही नहीं रहे थे। बोले जब देखो तब लंदन वाले, जब देखो तब लंदन के जेबीबी वाले। कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब गुरुदेव खुद मर्जी करा रहे हैं, दे रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं जाओगे? तो हमने इतना ही कहा उनको, मैं आप भी चले जाते। यदि ऐसा लगा कि खाली जब जहां देखो वहां जेबीबी लंदन है, मैंने कहा आप लोग को भी ला। बोले नहीं 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 नहीं, ये लंदन वाले ही चीट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो बड़ी कृपा रही गुरुदेव की, और ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं सभी को साधुवाद देती हूँ, और एंथू के साथ एनआरआई के लिए जाते हैं। आज हसू भाई का वहां कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ गुरुदेव के पास जाते हैं और वहीं से आते हैं। उसके बावजूद भी जाना, और इस बार थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका किंतु परंतु था, उसके बावजूद भी एनआरआई के लिए पहले से मानसिकता बना के रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जैसा कि अम्मी जी ने कहा, बोले आज सैकड़ों की भीड़ में भी, हजारों की भीड़ में भी खड़े रहेंगे तो हसू भाई इधर आओ, आज ऐसे ऐसे आवाज दे देते हैं। तो अम्मी जी ने कहा समझी जी, हम आचार्य के पास इतनी बार गए हैं, किसी श्रावक को आवाज देते नहीं सुनी थी, और हसू भाई को इतना जोर से आवाज दे के बुलाए थे। बोले ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। तो राजेश जी ने कहा इस बार आचार्य ने मुझे पर्सनली जान लिया। अब तक जेबीबी का मतलब सिर्फ आचार्य हसू भाई समझ रहे थे। तो राजेश जी बोले अब आचार्य का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदला है। जेबीबी मतलब राजेश जी भी हैं। और राजेश जी ने एक बात कही, जीत जी को भी शायद पर्सनली, शायद उन्होंने एक शब्द बोला, शायद पर्सनली जानने लगे। और एक एक बात और कहूँ, शायद इसी बार की बात है, अम्मी जी बताएं। बोले गुरुदेव मंगल पाठ सुना दीजिए। बोले कहाँ? बोले सब लोग। बोले कि सब जा रहे हैं? बोले हाँ, सारे सारे आप लोग जेबीबी के हैं, मतलब लंदन के हैं? हाँ, लंदन के हैं। तो बोले कि हाँ सारे हैं। 3 बार आज ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सारे हैं? बोले हाँ। तो अमित जी के फादर भी उसी ग्रुप में खड़े थे। बोले तुम भी वहां रहते हो? आचार्य जी को पता है कि वो इंडिया रहते हैं, इसलिए 3 बार बैक टू बैक पूछते रहे। और बोले तुम भी वहां रहते हो? बोले नहीं गुरुदेव, ये इंडिया में रहते हैं। अब आचार्य जी के देखो ध्यान कितना कितना पावरफुल है। तो चलिए, सबको सबके लिए आचार्य जी ने दिया है ब्लेसिंग, हम भी शुभकामना करते हैं कि आप लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। और आज हमारे पास आदिश जी हैं और इनकी जो सब सुने,
एक व्यक्ति इतना इतना सक्सेस हो सकता है, इतनी प्लेस में पहुंच सकता है, तो ये भी आश्चर्य की बात है। देखिए, बिना पुण्य के ऐसा होता नहीं है। अच्छा एफर्ट्स कर रहे हैं और अच्छी पहुंच है, अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो मैं इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और साथ में जैसे ही कल हम नहीं, मैंने अब हम नहीं जा पाए, तो खुद से ही समझ लीजिए आपका एड्रेस क्या है, मैं मिलने आता हूँ। तो ये भी देखिए इतना डाउन टू अर्थ होना। और 2 दिन के लिए जो व्यक्ति आया है, उसमें समय निकाल करके जेबीबी आना, समझ जी के पास आना, तो मैं सोचती हूँ शायद जेबीबी वालों के लिए ही कहूंगी, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आपको हम धन्यवाद दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ब्रदर ही हैं क्या, दोस्त हैं क्या? कश्मीर से हूँ। अपना परिचय खुद ही बता दीजिए, इसको रख दीजिए। हाँ, आपको प्रणाम। मेरा नाम भारत सिंह जमवाल है। मैं कश्मीर से हूँ, तो वकालत करता हूँ कश्मीर में हाई कोर्ट में और दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। सरकार की तरफ से मैं डिप्टी एडवोकेट जनरल रहा और भी कई जगहों कई अहदों में फायज रहा। उम्र मेरी 84 साल है। आई एम 84 ईयर। अरे वाह। 41 बार। 64 के लग रहे हैं। वो भी है। अब 20 साल कम कैसे लग रहे हैं, वो सीक्रेट बता दीजिए एक शब्द में। मैंने सारी उम्र यही कहा कि मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा करता हूँ। मैं उसके नाम से काम शुरू करता हूँ और उसी के नाम से मैं। बोलते तो सच है ना? हाँ जी। उसके नाम से करते हैं, लेकिन बोलते सच है ना? मैं सच बोलता बस यही नहीं, सीक्रेट है। नहीं। यही सीक्रेट है कि ये 84 के 64 लग रहे हैं। एडवोकेट होकर के देखिए, और सुप्रीम कोर्ट के, और व्यक्ति सत्य के राह पर चलना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुकदमे मेरे पास कई आए। मैं एक आपको उदाहरण दे देता हूँ। जब आदमी ईमानदारी से काम करे, ये काम करे वो करे, तो मैं अमेरिका में गया। मैंने भी दुनिया दुनिया घूमी है। मैं लंदन के अलावा नॉर्वे गया हूँ। अभी 17 जुलाई को आई वॉज ऑन नॉर्थ पोल। वर्ल्ड का सबसे 90 डिग्री पे है वो नॉर्थ पोल, नॉर्वे का है। तो वहाँ गया था। तो मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ। अब क्योंकि गुरुजी ने कहा ही है कि बताओ। मैं अमेरिका में गया, तो जिस रात मैं पहुंचा तो वहाँ पे एक 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 लड़के ने खुद भी गोली मारी और आप बीवी को भी मारी। एक बच्ची रह गई। उसके लिए लेने के लिए उसका लड़की बच्ची का दादा आया और एक तरफ से नानी आई। वो कि नानी कहती मुझे बच्ची चाहिए, दादा कहता बच्ची मुझे चाहिए। कानून के हिसाब से बच्ची जाती थी दादा को। लेकिन उस औरत ने मुझे अप्रोच किया। मैंने यही जो कहा कि मैं मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा करता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, लड़की नानी को मिलेगी। तो वो हैरान परेशान, कोई आदमी यकीन ना करे। मैंने अपने अमेरिका से नॉर्थ कोरोना में से वहाँ से मैंने टेलीफोन किया कि ये बात है कि ये कैसे, कहता है डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। तो ये लड़की जाएगी, दादा दादा आया है इसका, तो ले जाएगा उसके नहीं। मैंने कहा अगर नहीं जानी हो तो कहते हैं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने उसको कहा, उसकी नानी को कहा, शी कर्नल लखनऊ की थी, दोनों बच्चे लखनऊ के थे वो। मैंने उसको कहा कि आप ये मुझे बताओ, ये मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि जिंदगी का भरोसे की बात करता हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि मुझे आप एक सर्टिफिकेट ला सकते हो लखनऊ से कि this बच्ची when they land in India they will arrange school accommodation, एडमिशन फी कैसे, अब ये भी मिल जाएगा। मैं एक कमरा स्पेयर कर सकते हो उसके लिए, नानी को बोला कैसे अब ये भी हो जाएगा। मैं 5 लाख की एफडी कर दो, ये भी हो जाएगा। तो मैंने उसको, जो उन्होंने वकील किया था, मैंने उसको कहा कि यार थोड़ी सी एक सप्लीमेंट, एक एफिडेविट होता है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट होता है। तो मैंने एक एफिडेविट लिखो कि आई विल प्रोवाइड दिस दिस अकोमोडेशन, ये वो तो करना है। तो उसने लिखा दे दिया, बहस हुई।
तो दोनों वकीलों की तरफ, वो वकील भी थे इनका। जज ने मुझे देखा, कहता है, उसने ये पूछा ये लिखा किसने है? कहते तेरी लिखाई तो है नहीं, ये कोई इंडिया कोई और ही आदमी है। मैं हूँ, मैंने इंडिया का वकील आया हूँ, तो मैंने लिखा है। तो कहते आप कुछ इस पर कहना चाहते हैं? हाँ मैं कहना चाहता हूँ। लड़के ने, मैंने कहानी सुनी थी उनकी सारी। मैं देखो होता क्या है, मैंने कहानी सुनी थी कि ये सारी बात, लड़के ने लड़की के खिलाफ ये एक मुकदमा किया था कि शी इज एली करेक्टर। तो ये बात मैंने सुनी थी। तो जब जज मुझे कहना आपने कुछ कहना, मैं मुझे दो लफ्ज कहने हैं। मैं ये है अमेरिकन बार्न, कैन यू थ्रो टू द टू द डॉग्स के ये बच्चा, ये आदमी इसका जो ग्रैंड फादर है, दादा, इसको रखेगा जीवित? तो कहना क्यों? मैंने कहा इसके अडल्ट्री का इल्जाम है, तो ये शी इज ए प्रोडक्ट ऑफ अडल्ट्री। जज जितनी परेशान हो गई, वो डिस्ट्रिक्ट जज थी, वो परेशान हो गई। कहने लगी कि ये तो अडल्ट्री, ये कहेगा प्रोडक्ट, दे विल किल द मोमेंट लैंड इन इंडिया। तो मैं कैन दी अमेरिकन अफोर्ड दिस थिंग? कहते नहीं ये नहीं कर सकते। उसने फैसला दे दिया, लड़की दे दी नानी को, उल्ट दिया। तो वो हंसने लगा दूसरा वकील, कहता है कि ये देखो कितना गलत फैसला किया है। एक कान वर्ल्ड कानून को बदला है, जो इनहेरिटेड आता है कि दादा से बाप, बाप से बेटा, तो प्रॉपर्टी जाती है, इस तरह ट्रांसफर होती है। तो ये उल्टी लाइन पे की इसने। तीसरे दिन उन्होंने पिटीशन दायर की डिवीजन बेंच नॉर्थ कोलोना में। जजों ने फाइल पढ़ी, वो घर से पढ़ के आए थे कि ये दादा, दादे के पास दादी है नहीं, तो लड़की थी वो 8 साल की, उसको देखना है। मैं बिल दी अमेरिकन फोर्ड दैट देयर डॉटर कैन बी सीन बाय नेक्ड बाय ए मेल मैन। कैन, उसमें ये भी लिखा था। सारी बातें जब मजबूत तौर पर देखी तो उन्होंने लड़की दे दी नानी को। मैंने कहा कि मैं जो कहा कि आप यही करते हो, मैं यही कहता हूँ, हम जो करते हैं, जिसका साथ देते हैं उसी का देते हैं, और परमात्मा हमारे साथ, हमारा साथ देता है। वरना वरना अगर वो लड़की जाती, दादे को जाती, तो वो मार देते उसको, क्योंकि उसको तो प्रॉपर्टी चाहिए थी। को वो प्रोडक्ट, उन्होंने यही डिक्लेयर किया था ये प्रोडक्ट है अडल्ट्री का। इसलिए तो अगर उसके नाम की यह बात रखी है तो बच्ची से, आप वो ये बात है 2005 की। तो वो अभी पिछले दिन जम्मू में आई। तो मैं था वैष्णो देवी जाना था, उन्होंने, तो वो आए, तो वो कहने लगे कि ये बच्ची, तो मैंने कहा अब जवान हो गई, शादी करने जा रहे हैं वो। तो मैंने कहा देखो परमात्मा, ये ऊपर वाला भी है, वो भी उसकी मेहरबानी है, नेमतें और बरकतें वो हमारे साथ रहती हैं, और गुरु जी का साथ हो तो हमें जो जिस काम के लिए हाथ डालते हैं वही होते हैं। अब मैं इनके डॉक्टर DC अग्रवाला के साथ आया हूँ, तो इन्होंने मुझे यूरिस्ट बनाया, तो मैं बनते बनते यहाँ इनके साथ भी आ गया। और जब बात चली मेरी जम्मू एंड कश्मीर की रियासत रियासत थी वो। तो पाकिस्तान के झगड़े में वहाँ पर वादी हैं, खूबसूरत है, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत, अगर 198 कंट्री में है तो वो है जम्मू कश्मीर। तो अब वो बर्बाद हो गई इसी चक्कर में। तो अब इन्होंने कहा कि पीस चाहिए, तो पीस कैसे हो सकता है? तो और एटम बम के बारे में, तो पीस पीस इस तरह हो सकता है कि जब तक लोगों को दिल मिल जाए, मन मिल जाए, और रूहानी ताकत साथ शामिल हो जाए। तो मैं इतना कहता हूँ, आप सभी लोगों का धन्यवादी हूँ। बड़ी बात है। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, वो जो भी हम काम करते हैं सही करते हैं, परमात्मा हमारा साथ देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं भारत जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इसी तरह अपने लाइन में आगे बढ़ते रहें। बस काम वही करना चाहिए जिससे आत्मसंतोष हो। नहीं तो काम कर लिया और बाद में गिल्ट फील हो रहा है, वैसा काम इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। एक कहावत के साथ अपनी बात को मैं संपन्न करती हूँ। दिन के उजाले में वो काम मत करो कि रात को सो न सको, और रात के अंधेरे में वो काम मत करो कि दिन के उजाले में मुंह किसी को दिखा ना सको।
तो व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिससे आत्मसंतोष हो, आत्मसंतुष्टि हो। और हमारे भारत भाई और अधीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। तो मैं दोनों को आज जेबीबी की तरफ से वेलकम भी कर रहे हैं, साधुवाद भी दे रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं, वो हमारा हम। और आप क्या चीज ऐसा है हमारा, तो ये क्या काम आएगा, है ना। ठीक है, पकड़ेंगे कि नहीं आप लोग आके, हाँ एक बार। सभी को डाल दो। नहीं फोटो उठा लो, फोटो नहीं। हाँ वो हम पकड़ते नहीं हैं, है ना। हाँ। ये वो ये भी पहने सभी को डाल आई मेंटली मेरे हाथ में पकड़ा देते। तुम्हारे हाथ में तो क्या करते हैं? अच्छा थैंक यू। और जेबीबी की तरफ से भी पशु भाई मानक जी अभी आ गए। नहीं हाँ ठीक है भाई, हाँ कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलिए, बोलो। सर्टिफिकेट ठीक है, तो मैं एक बार मंगल पाठ सुना देती हूँ सभी को। और आज हमारे बीच सुभाष जी भी देखिए इंडिया से आए हुए हैं। एक बार मैं मंगल सुना रही हूँ, तब आप आगे तो आ जाओ। आज 3 के मम्मी पापा आए हुए हैं, अमित जी के मम्मी पापा, और मयूर जी के सास ससुर, और सुनील जी के अपने मम्मी पापा। तो आज तीनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, सुभाष जी औरंगाबाद के आखा तीज का पूरा प्रोग्राम सुभाष जी ने लीड लेकर के किया था। और एक बात पूछ के गए थे, समझे जी यहाँ भी कोई वर्षी तब करते हैं क्या, कोरियर से भेजना, तो बहुत बड़ी बात है। तो सुभाष जी को भी हम बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। आज लेट हो गया, वैसे भी 1 मिनट कुछ बोलना चाहो तो। हाँ जी, सुभाष जी 1 मिनट कुछ बोलेंगे। वंदे गुरुवर, वंदामि नमः स्वामी। मैं केवल 1 ही मिनट लेना चाहता हूँ। मैं सुभाष नार औरंगाबाद से हूँ और प्रेजेंटली जैन विश्व भारती लाडनू का ट्रस्टी हूँ। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको आने का आमंत्रण देता हूँ। आने वाले 2026 योग क्षेम वर्ष लाडनू में मनाया जा रहा है। गुरुदेव का चातुर्मास का लाडनू में है। गुरुदेव करीब करीब 13 माह वहां रह रहे हैं और अभी लाडनू का जो जैन विश्व भारती परिसर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वहां पे करीब करीब 80 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। 800 फ्लैट का भी निर्माण हुआ है जो स्थायी स्वरूप से आने वाले श्रावक लोग वहां रुक सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि समय निकाल के एक बार गुरुदेव के सानिध्य में रहने के लिए लाडनू आप जरूर जरूर आए। विजिटर सेंटर बन गया है। और सुभाष जी जैसे मयूर जी अपने आप में यूनिक है, तो सुभाष जी भी अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी है। मतलब बहुत जबरदस्त, जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं। औरंगाबाद में रहते हुए जेबीबी के ट्रस्टी बन जाना लाडनू के, तो अपने आप में सोचिए कितने आइडल इंसान होंगे। तो आज जेबीबी का सौभाग्य है कि आए हैं, और आपका निमंत्रण, हम भी साथ में है। लाडनू तो हमारा हमारा लाडनू तो देखिए हमारा ही क्षेत्र है। तो गुरुदेव के सानिध्य में लाडनू अपने आप में विजिटर, जैन विश्व भारती विजिटर सेंटर बन गया है। तो जैसे आप लोग दर्शनीय स्थल पर देखने जाते हैं, तो मुझे लगता है और अगली साल 2026 तो जिधर देखो तो उधर आपको वाइट 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 ही दिखेगा। हो गया। स्थान का तो कायाकल्प ही, और 400 से 500 लगभग साधु संत आपको सब जगह दिखेंगे।
तो अपने आप में बड़ा अच्छा है। जिनको भी जितना समय मिले, ये मैं सुभाष जी की तरफ से साथ में इनके सम्मिलित होकर के कह रही हूँ, 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीना भर जितना आनंद आ जाएगा बस। ठीक है, चलिए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पौच्यामि अरहन्ति शरणं पौच्यामि सिद्धि शरणं पौच्यामि साहु शरणं पौच्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौच्यामि। ओम हर एक चाहते हुए भी थोड़ा सा समय अधिक हुआ है, उसके लिए सबसे खमत कामना भी करते हैं। 12:30 लक्ष्य रहता है कि एग्जैक्ट आपको हॉल से छुट्टी दे दे, लेकिन अब करते 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 ठीक है। ओम हर